हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 28 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश इज सेट टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज। So the center will be named Jatayu Conservation and Breeding Center, and it aims to improve the population of critically endangered Asian king vultures listed in the IUCN Red List since 2007. So Asian king vultures की बात करें तो they are endangered due to habitat loss and the use of diclofenac in domestic animals, which is poisonous for vultures. And the center will ensure the good health of vultures and provide pairs for breeding, releasing them into their natural environment after an egg is laid. सो आप ध्यान रखेंगे, विश्व का जो पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है उसकी स्थापना किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, और इसका नाम होगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। आप ध्यान रखेंगे कि एशियन किंग वल्चर जो है इनका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state has the Ministry of Coal initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये किया जाएगा झारखंड में। आप यहाँ देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड, and the pilot project is being undertaken by Eastern Coalfields Limited at the Kasta Coal Block in Jamtara district of Jharkhand. So this initiative aims to revolutionize the coal industry by using in situ coal gasification to convert coal into valuable gases such as methane, hydrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide. So the gases produced through this process can be used for various industrial applications, including synthetic natural gas, chemical feedstocks, and fertilizers. सो आप ध्यान रखेंगे, ये भारत का अपनी तरीके का पहला एक पायलट प्रोजेक्ट है कोल गैसिफिकेशन से संबंधित, और जो किया जाएगा झारखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the top destination for Indian millionaires to move to in 2024 according to the Henley Private Wealth Migration Report? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय करोड़पतियों के लिए कौन सा देश शीर्ष गंतव्य है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, यूएई या फिर कनाडा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो भारतीय करोड़पतियों के लिए जो शीर्ष गंतव्य स्थल है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट। आप यहाँ देख सकते हैं, UAE is expected to attract a record net inflow of 6,700 wealth migrants in 2024. The UAE offers a zero income tax policy, making it highly attractive for
NHWIs. So the UAE's Golden Visa program and luxurious lifestyle are major draws for millionaires. Its strategic location and a robust wealth management ecosystem enhance its appeal. So UAE की बात करें तो UAE has developed a strong regulatory framework for wealth management in less than 5 years, and Indians are among the top nationalities deriving demand for the UAE's residence and citizenship programs. So around 4,300 Indian billionaires are expected to migrate out of India in 2024, according to this report. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements about the process of taking the oath by members of parliament in India. यहाँ पर भारत में संसद सदस्यों द्वारा शपथ लेने की प्रक्रिया के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, the term of the Lok Sabha MP begins with the Election Commission of India declares the election results. And second, MPs can debate and vote in the Lok Sabha even if they have not taken the oath of office. And third, the text of the parliamentary oath is provided in the third schedule of the Constitution of India. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि संसद सदस्यों की जो शपथ से संबंधित प्रक्रिया है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है. आप यहाँ देख सकते हैं, winning the election and starting the term does not automatically allow an MP to participate in House proceedings. MPs must take the oath or affirmation as prescribed in the Constitution, Article 99, to debate and vote in the Lok Sabha. So, लोक सभा की oath taking process की बात करें तो oath requirement ये होता है that MPs must take oath or affirmation to participate in House proceeding. Constitutional provision की बात करें तो the text of the parliamentary oath is provided in the third schedule of the Constitution of India. अब बात करते हैं लैंग्वेज की कि oath की जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए. So MPs can take the oath in English, Hindi or any of the 22 languages specified in the Constitution. So आप ये ध्यान रखेंगे जो ओथ की लैंग्वेज होती है वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है. इसके अलावा वो 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं उनमें से कोई भी भाषा हो सकती है. जेल्ड एमपीज की बात करें तो एमपीज इन जेल कैन बी परमिटेड बाय द कोर्ट्स टू टेक द ओथ इन पार्लियामेंट. इसके साथ ही अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में है तो लोकसभा की बात करें तो इसको हम हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस कहते हैं. So members of the Lok Sabha are elected by an adult universal suffrage and a first past the post system to represent their respective constituencies, and they hold their seats for 5 years or until the body is dissolved by the president on the advice of Council of Ministers. Next question की ओर. What is the long-term objective of the ISRO with the Pushpak RLV program? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पुष्पक RLV कार्यक्रम के साथ इसरो का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है. आपके ऑप्शंस हैं टू क्रिएट अ मैन्ड स्पेसक्राफ्ट फॉर लूनर मिशंस, सेकंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, थर्ड टू एस्टैब्लिश अ स्पेस स्टेशन या फिर टू डेवलप अ मार्स रोवर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इसका उद्देश्य है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट्स. आप यहाँ देख सकते हैं पुष्पक आरएलवी की बात करें तो आरएलवी का फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और इसको डिजाइन किया गया है टू बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स रिड्यूसिंग मिशन कॉस्ट एंड इट इज क्रिएटेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन.
सो RLB-TD की बात करें तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इज यूज्ड टू टेस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट वाज डन ऑन May 23, 2016. आपने देखा कि इसका जो उद्देश्य है वो है टू लोअर द कॉस्ट ऑफ पेलोड लॉन्चेस एंड इट फोकसेस ऑन ऑटोनोमस री एंट्री एंड लैंडिंग. So bring the body design similar to space shuttle for a controlled landing. तो आप ध्यान रखेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो है इट इज अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशंस दैट हैज बीन conceived by the ISRO as first step towards realizing a two-stage to orbit reusable launch vehicle. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The 43rd World Medical and Health Games take place. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं. आपके ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, लंदन यूनाइटेड किंगडम, सेंट ट्रोपेज फ्रांस या फिर ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो जो 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हुआ है इसका आयोजन हुआ है सेंट ट्रोपेज फ्रांस में. आप यहाँ देख सकते हैं The 43rd World Medical and Health Games took place in the Saint-Tropez, France, and this event is the largest sports event for the health professionals globally. So the games attracts over 2,500 participants from more than 50 different nations annually. And 2024 edition saw 4 AFMS officers from India winning a record of 32 medals. So from Armed Forces Medical Services officers, Lieutenant Colonel Sanjeev Malik, Major Anish George, Captain Stephen Sebastian, and Captain Dania James clinched 32 medals, including 19 golds at the 43rd World Medical and Health Games. So 43rd World Medical Health Games में भारत की तरफ से 4 मेडिकल ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने टोटल 32 मेडल्स जीते हैं जिनमें की 19 गोल्ड मेडल्स हैं. सो पहला मिड गेम्स की बात करें तो पहले मिड गेम्स का आयोजन हुआ था 1978 में इन कैन्स फ्रांस और इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 43rd एडिशन है वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स का. सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.